Hello student. Hello student. Good morning. How are you? Today I am going to start Fajan rules. Okay. Yesterday I completed dipole moment. Okay. Now today I will start Fajan rule. How the cation work as uh, how the cation form covalent bond. Okay. According just as all the covalent bonds have the some partial ionic character, as you have seen, if the two elements are bonded covalently and one and the sorry one if two elements are bonded with covalent bond but there is difference of electronegativity, then that covalent bond will be polar. Okay, this way there is partial ionic character in between these two element. अगर दो एलिमेंट कोवेलेंट बॉन्ड से बंधे हुए हैं और दोनों के बीच में कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो उस कंडीशन में जो है कि पोलैरिटी आ जाएगी और पोलैरिटी जो होगी उस पोलैरिटी के कारण आयनिक कैरेक्टर आ जाएगा. ओके, आयनिक कैरेक्टर आ जाएगा. अब इस आयनिक कैरेक्टर को जो है डिस्कस किया जा सकता है फाजान रूल के थ्रू. कब कौन आयनिक कैरेक्टर शो करेगा, कब कौन कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा, ये हम सारा जो है फाजान रूल से डिसाइड कर सकते हैं. अब ये क्या है हम लोग देखेंगे यहाँ पे. ठीक है, तो पहला है कि क्या कंडीशन है. पहले कंडीशन ये है कि अगर कैटायन बहुत छोटा है, स्मॉलर द कैटायन एंड लार्जर द एनायन. ओके, if there is such condition that cation is very small and anion is very large, okay, then there will be covalent character, okay, of the ionic bond. Suppose if there is one cation and anion and one anion, we know that there is electrovalent bond in between the cation and anion. But in if a condition cation has a very small size and anion has a very large size, then there will be what? There will be covalent character of the ionic bond. Example, you can say lithium chloride. Lithium chloride have some covalent character. Okay, aluminum chloride have also covalent character. Why? Due to difference of size. Okay, size of chlorine in both cases is very large. Okay, and metal is small. So metal ion or cation is smaller and an ion is if larger in size, then their ionic bond will be of the covalent character. Second thing is greater the charge on the cation, okay, greater will be covalent character. Now you can take the example of aluminum chloride and sodium chloride. Okay, formula of aluminum chloride is AlCl3. You know that AlCl3.
Okay. And you know that what will be charge on aluminium, and in case of NaCl you can see, in case of NaCl what will be charge on sodium, you can imagine. In this case sodium has 1 plus charge only, and in this case chlorine aluminum has plus 3 charge. Okay, then therefore according to Fajan, if greater the charge on cation, greater will be covalent character. Now for cation of is same size and charge, okay, if cations are of same size and have the same charge, okay, with the electronic configuration, if the electronic configuration is such that n minus d n and n s0, this one is for the transition element, okay, then more polarizing than the one of the noble gas configuration. There will be more polarization in comparison to the noble gas configuration. Okay, and a typical of the alkali metal and alkaline earth metal. Okay, alkali metal and alkaline earth metal. ओके, कहने का मतलब है बच्चों कि अगर कैटायन स्मॉलर साइज का है और एनायन बड़ा साइज का है तो वहाँ पे जो आयनिक बॉन्ड बनेगा कोवेलेंट कैरेक्टर का होगा। और जो है कि अगर ग्रेटर चार्ज है कैटायन के ऊपर, ग्रेटर द कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, और स्मॉलर चार्ज होगा तो आयनिक कैरेक्टर हो जाएगा। ओके, और अगर एग्जांपल हम देते हैं कि सेम चार्जेज हैं दोनों के ऊपर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह का है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ इस तरह का, तो पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा। ओके, वहाँ पे पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इनर्ट गैसेस का, टिपिकल एल्कली या एल्कलाइन अर्थ मेटल कैटायन का, क्योंकि एल्कली मेटल कैटायन एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल कैटायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस का ही होता है। ठीक है, द कैटायन पोलराइजेज एनायन, who cation polarizes anion and pulling the electronic charge and pulling the electronic charge toward itself, okay, and thereby increasing the electronic charge between the two. मीन्स कहने का मतलब है जब कोई भी कैटायन पोलराइज करता है एनायन को तो वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को अपनी तरफ खींच लेता है। ओके, इससे क्या होता है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बढ़ जाता है, और जब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। क्या बनेगा, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। ओके, कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा ये, ठीक। कहने का मतलब है कि बिल्डिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी बिटवीन द टू न्यूक्लियाई, अगर दो न्यूक्लियाई के बीच में चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है, अब पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन बढ़ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनायन
and extent of distortion means polarization of anion are the factors which determine the covalent character of ionic bond। क्या क्या चीज़ें हैं जो ये डिटरमाइन करती हैं कि आयनिक बॉन्ड का कैरेक्टर कोवेलेंट होगा। पहला तो कैटायन का पोलराइजिंग पावर, कैटायन की पोलराइजिंग पावर जितनी होगी, पोलराइजेबिलिटी एनायन की जितनी होगी, और कितना पोलराइजेशन एनायन का हो सकता है किस लेवल तक, तो ये सारे फैक्टर हैं जो है कि कोवेलेंट कैरेक्टर आने का आयनिक बॉन्ड में। फिर एक बार बता देते हैं कि अगर कैटायन की पोलराइजिंग पावर कितनी है, एनायन किस एक्सटेंट तक पोलराइज हो सकता है, और क्या डिस्टॉर्शन किस एक्सटेंट तक हो सकता है, वो जो है कि डिटरमाइन करता है कि कोवेलेंट कैरेक्टर होगा आयनिक बॉन्ड में। ओके, अब हम यहाँ पे स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे थ्योरी। अब कुछ थ्योरी है कि कोई भी अगर बॉन्ड ऑक्टेट पूरा कर लिया, किसी भी एलिमेंट का ऑक्टेट अगर पूरा हो गया, तो क्या वो स्टेबल हो गया? नहीं, वो स्टेबल नहीं हुआ। स्टेबल के लिए थ्योरी बताई गई है। जहाँ तक इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड की बात होती है, तो वहाँ पे सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रॉन दिया और इलेक्ट्रॉन लिया और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आया और इसकी वजह से चिपक गए, हो गया काम। लेकिन अब जहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में कंडीशन दूसरी हो जाती है। तब वहाँ पे जो है कि डायरेक्शन आ जाता है। अब उस डायरेक्शन में जितने भी एलिमेंट के एटम हैं, जितने दूर रहेंगे, जितने मतलब कि रिपल्सन कम से कम होगा, उतना ही ज़्यादा स्टेबल होंगे। ठीक है, अब इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए जो है सेडविक ने एक थ्योरी दी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर repulsion theory, and this theory is known as whisper theory, and it was given by Sedgwick to explain the structure. Now you can see here very clearly molecule of AB type। अगर कोई मॉलिक्यूल AB टाइप का है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे HF देखते हैं, इसका डाइपोल मोमेंट तो आएगा ही 1.78 आएगा। शेप कैसा होगा? लीनियर होगा, शेप लीनियर होगा। ओके, शेप यहाँ पे जो होगा वो लीनियर होगा। और HCl को अगर देखा जाए तो यहाँ ये भी जितने भी AB टाइप के होंगे सबके स्ट्रक्चर क्या होंगे? लीनियर होंगे। आई बात सुनने। नेक्स्ट हमारा मॉलिक्यूल AB2 आ जाता है। अगर इस कंडीशन में है तो अब कितना रिपल्सन हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे कहने का मतलब यहाँ पे डाइपोल मोमेंट 1.85 है, बेंट स्ट्रक्चर आया। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जो है 0.95 है, कुछ डाइपोल मोमेंट है तो बेंट स्ट्रक्चर आया। बेंट स्ट्रक्चर कैसा होगा? बेंट स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो बेंट स्ट्रक्चर ऐसे आएगा, इस तरह से बेंट स्ट्रक्चर आएगा ऐसे। और जो O2 के केस में है, CO2 के केस में वो लीनियर स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्या है? जीरो है। जीरो डाइपोल मोमेंट ही नहीं है के कारण वहाँ पे वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के हिसाब से इतना ज़्यादा रिपल्सन है कि स्ट्रेट वे में आकर के कार्बन डाइऑक्साइड स्टेबलाइज हो जाती है। ज़्यादा मतलब कहने मतलब नहीं कि हर जगह जीरो होगा तो लीनियर ही होगा, ऐसा नहीं है।
वो डिपेंड करता है कि कितना रिपल्सन हो रहा है, वहाँ कितने लोन पेयर हैं, कितने बॉन्ड पेयर हैं सेंट्रल मेटल के आसपास और जो साथ में एटम है उनके पास, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है और उस रिपल्सन के कारण उस पर्टिकुलर शेप में आ जाते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो डाइपोल मोमेंट यहाँ पे AB3 टाइप में NF3 और NH3 में देखें तो क्या है 1.47.323 है, दोनों में देख रहे हैं, लेकिन शेप कैसा है ट्राइगोनल पिरामिडल है, ट्राइगोनल पिरामिडल है। लेकिन इसके BF3 के केस में क्या है, यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनर है, यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनर है। आई बात समझे। इसी तरह से हम यहाँ पे देखते हैं CH4 में, यहाँ पे जो टेट्राहेड्रल आता है CHCl3 में भी 4 बॉन्ड बने हैं कार्बन के आसपास, टेट्राहेड्रल होगा। CCl4 में भी 0 है डाइपोल मोमेंट, मगर शेप क्या है टेट्राहेड्रल है। तो ये चीज़ तो फिक्स है कि अगर इस टाइप के मॉलिक्यूल होंगे, ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल होंगे तो इनका शेप ऐसा ही होगा, ये फिक्स है। मॉलिक्यूल के शेप पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रख करके देखना है। तो ये हमारा वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी जो कि हमें बताता है कि क्या किस तरह से शेप मॉलिक्यूल का होगा। ओके, तो सेडविक और पाउलिंग ने ये थ्योरी दी थी। अब उस थ्योरी को फिर बाद में फर्दर डेवलप किया था जो है नाइलोम और गिलेप्सी ने, ओके, 1957 में। अब इसके क्या मेन पास्चुलेट थे, देखो बॉन्डिंग कर लिया, ऑक्टेट पूरा कर लिया, इससे मतलब नहीं है कि बॉन्डिंग पूरी हो गई, ऑक्टेट पूरा हो गया तो मॉलिक्यूल स्टेबल हो गया। बॉन्ड क्यों बन रहा था, बॉन्ड बन रहा था स्टेबिलिटी के लिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए, लेकिन ऑक्टेट पूरा हो गया मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, ये कैसे पता लगेगा। तो ये जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, कितने वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन हैं इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल मेटल या सेंट्रल एटम। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि किसी भी मॉलिक्यूल का शेप डिपेंड करता है कि उस मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के पास कितने वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब वो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन में से जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे दैट विल बी बॉन्डेड, एंड जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे दैट विल बी नॉन बॉन्डेड। ओके, अभी हम स्ट्रक्चर के थ्रू देखेंगे। अब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल रिपेल वन अनदर, अब जब बॉन्डिंग हो गई तो भी, फ्री हैं तो भी, दे विल क्रिएट रिपल्सन फोर्स। ओके, because you know that electron have negative charge, therefore everywhere there will be repulsion between electron, whether that is bonded pair electron or non bonded pair electron. So second thing, it is clear that there will be repulsion between the electron cloud. Why it is, electron is negatively charged. तो बॉन्डिंग करने के बाद बच्चों जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, चाहे बॉन्डेड हो चाहे नॉन बॉन्डेड हो, वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन हो वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होने का कारण क्या है, चार्ज, निगेटिव चार्ज। ओके, ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम इसमें अब देखते हैं सेकेंड पॉइंट। तो ये समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में रिपल्सन होता है, चाहे वो बॉन्डेड हो चाहे नॉन बॉन्डेड हो। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेंड टू ऑक्यूपाई सच पोजीशन इन स्पेस टू मिनिमाइज द रिपल्सन। अब ये रिपल्सन जब होता है तो वो कोशिश करते हैं कि इतना स्पेस पा जाए, मैक्सिमम डिस्टेंस, इतना मैक्सिमम डिस्टेंस एक्वायर कर लें कि रिपल्सन कम से कम हो। तो मिनिमम रिपल्सन के लिए मैक्सिमम डिस्टेंस ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि वो
जिससे ये होता है कि एक स्टेबल स्ट्रक्चर बन जाता है जब रिपल्सन मिनिमाइज हो जाता है। जब रिपल्सन क्या होता है, मिनिमाइज हो जाता है। वैलेंस सेल इज टेकन एज द स्फीयर। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जो वैलेंस सेल है उस मान लेते हैं कि एक स्फीयर है, एक स्फीयर है विद द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स लोकलाइजिंग ऑन द स्फीयर। ये मान लेते हैं कि गोला है, गोले के ऊपर इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह से मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो जाते हैं, ठीक है। जैसे आज हम लोग कोरोना के कारण मैक्सिमम डिस्टेंस पे हैं एक दूसरे से, तो रिपल्सन कम से कम है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन स्फीयर के ऊपर आ जाते हैं और दूर दूर होते हैं। जहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड होता है वहाँ उसको हम सिंगल बॉन्ड ही ट्रीट करते हैं। ओके, सिंगल पेयर इलेक्ट्रॉन ट्रीट करते हैं। 2 और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर जो मल्टीपल बॉन्ड होता है उसको सिंगल सुपर बॉन्ड करते हैं। ओके, तो इस तरह से ऐसा है कि जहाँ मल्टीपल बॉन्ड होता है, अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर है तो उसको तो हम सिंगल बॉन्ड ट्रीट करेंगे ही, लेकिन जहाँ सॉरी जहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड होगा उसको सिंगल सुपर पेयर करेंगे। वेयर 2 और मोर रेजोनेंस स्ट्रक्चर अगर हैं मॉलिक्यूल में, तो द विस्पर मॉडल इज एप्लीकेबल टू द एनी सच स्ट्रक्चर। तो वहाँ पे कोई एक स्ट्रक्चर को हम ले करके कर लेंगे, उसका स्ट्रक्चर डिफाइन कर देंगे। ओके, अब इस पॉइंट को नोट करना बहुत ज़रूरी है। ओके, यहाँ पे जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर जो रिपल्सन का ऑर्डर है, इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है, ठीक है। दो लोन पेयर के बीच में रिपल्सन बहुत ज़्यादा होता है और दो बॉन्ड पेयर के बीच में जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच का जो रिपल्सन है वो लोन पेयर रिपल्सन से कम होता है। लेकिन यही लोन पेयर बॉन्ड पेयर जो रिपल्सन है वो बॉन्ड पेयर से ज़्यादा होता है। आई बात सुनने? तो अब इस बेस के आधार पे हम डिफाइन करेंगे कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। ओके, तो आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी सबको। ओके, इसी चीज को नाइलोम और गिलेप्सी ने जो है कि डिफाइन करके विस्पर थ्योरी की वैलिबिलिटी बढ़ा दी, रीफाइन कर दिया उसको, उसका इम्पोर्टेंस बढ़ गया स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट करने में, ठीक है। अब उन्होंने बता दिया कि वाइल द लोन पेयर्स आर लोकलाइज्ड ऑन द सेंट्रल एटम, ईच बॉन्डेड पेयर इज शेयर्ड बिटवीन टू एटम्स। ओके, जब लोन पेयर लोकलाइज होते हैं सेंट्रल एटम के ऊपर, तो ईच बॉन्ड पेयर जो होते हैं वो इक्वल शेयर हो जाते हैं। अब एज ए रिजल्ट क्या होता है, एज ए रिजल्ट जो है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इन ए मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई द स्पेस टू कंपेयर टू द बॉन्डिंग पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब जो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड पेयर से ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं लोन पेयर, बॉन्ड पेयर से ज़्यादा ऑक्यूपाई कर लेते हैं स्पेस लोन पेयर वाले। अब वहाँ पे उसके कारण जो है कि रिपल्सन बढ़ जाता है। अब रिजल्ट इन द ग्रेटर रिपल्सन बिटवीन द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर। बात समझा? कारण क्या हुआ कि लोन पेयर बहुत ज़्यादा स्पेस लिया, दो मोटे आदमी आ गए, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो गया, स्पेस ऑक्यूपेशन ज़्यादा हो गया तो रिपल्शन भी बढ़ गया। इसीलिए लोन पेयर रिपल्शन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन से ज़्यादा होता है, और बॉन्ड पेयर रिपल्सन जो होता है वो सबसे कम होता है। ओके,
तो इस तरह से जो रिपल्सन होता है, उस रिपल्सन का इफेक्ट क्या होता है, उस रिपल्सन का इफेक्ट जो स्ट्रक्चर के ऊपर पड़ता है, ज्योमेट्री के ऊपर पड़ता है, ठीक है, तो शेप भी चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस तरह से विस्पर थ्योरी की मदद से हम ज्योमेट्रिकल शेप किसी का डिसाइड कर लेते हैं कि क्या होगा, ठीक है। और इसको हम जानने के लिए दो पार्ट में हम मॉलिक्यूल को डिवाइड कर लेते हैं। एक मॉलिक्यूल वो जिसके अंदर कोई लोन पेयर नहीं है, सारे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हैं, सारे ही बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हैं। यानी एग्जांपल के रूप में हम अगर हम CH4 को ले लें, CH4, ठीक है, तो अब यहाँ कार्बन के चारों तरफ बॉन्ड है, यहाँ कोई लोन पेयर नहीं है, ठीक है। दूसरा जो मॉलिक्यूल होता है वहाँ सेंट्रल पिक के पास एक से अधिक जो है लोन पेयर होता है, एक से अधिक, एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है। एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं कि अगर जैसे अमोनिया है, अमोनिया का फार्मूला क्या है, NH3 बच्चों। इस NH3 का अगर हम 3 बॉन्ड बनाने के बाद देखें तो एक लोन पेयर बच जाता है इस सेंट्रल के पास। अब ये भी स्पेस एक्वायर करेगा इन कंपैरिजन टू सिंगल बॉन्ड बिटवीन द हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पे OH2O में देखें, ये ऑक्सीजन है और यहाँ पे वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल यानी हाइड्रोजन है, ये हो गया हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 लोन पेयर हो गए सेंट्रल के पास। अब सबका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 इसका भी है, sp3 इसका भी है, sp3 इसका भी है। अब सबको टेट्राहाइड्रल होना चाहिए, लेकिन टेट्राहाइड्रल कौन है, ये टेट्राहाइड्रल है, ये बेंड स्ट्रक्चर वाला है और ये क्या पिरामिडल है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ लोन पेयर के कारण। यहाँ लोन पेयर नहीं था, यहाँ लोन पेयर था 2, यहाँ लोन पेयर 1 था। 1 था तो यहाँ पे पिरामिडल शेप आया, यहाँ पे 2 था तो बेंड शेप आया, और यहाँ पे 4 बॉन्ड पेयर थे तो यहाँ पे पूरा रेगुलर ज्योमेट्री आ गई टेट्राहेड्रल। तो इसके हिसाब से 2 तरह के मॉलिक्यूल होते हैं, एक तो जहाँ पे केवल बॉन्ड पेयर है और एक जहाँ पे लोन पेयर 2 है, जहाँ लोन पेयर 1 है। 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, 2 से भी ज़्यादा हो सकता है। तो इस तरह से 2 तरह के मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं। तो ऐसे पेयर में जहाँ पे केवल बॉन्ड पेयर होंगे वहाँ पे तो सारा रेगुलर ज्योमेट्री, रेगुलर शेप होगा, जो एक्सपेक्ट करेंगे वही होगा। लेकिन जहाँ पे लोन पेयर भी आ जाएगा तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, डिस्टॉर्टेड हो जाएगी, वहाँ पे शेप चेंज हो जाएगा, शेप चेंज हो जाएगा। जैसे हम एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं फिगर में। अब यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड या BeCl2 है, ठीक है, ऐसा ही कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। तो यहाँ पे क्या स्ट्रेट बन गया, ये स्ट्रेट लाइन खिंच गई है, क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन हुआ, लोन पेयर ज़्यादा है, रिपल्सन हुआ, स्ट्रेट हो गया, इधर से भी रिपल्सन, इधर से भी रिपल्सन, तो स्ट्रेट वे में हो गया। BF3 में ट्राइगोनल शेप में स्टेबलाइज कर गया, इसमें टेट्राहेड्रल शेप में, इसमें ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप में आकर के ये क्या होते हैं, स्टेबलाइज हो जाते हैं। तो हमारे कहने का मतलब है कि बॉन्डिंग कर लिए, ऑक्टेट पूरा कर लिए, तो क्या मॉलिक्यूल स्टेबल हो गया। अरे मतलब नौकरी पा गए, तनख्वाह अच्छी मिल रही है, तो क्या हम स्टेबल हो गए। स्टेबल तो तब होंगे जब उस पैसे को संभाल करके रखेंगे, और उस पैसे को संभाल के रखने के लिए एक मजबूत जगह होगी। तो ये बॉन्ड भी जब तक रिपल्सन कम से कम नहीं होगा, मॉलिक्यूल ज़्यादा से ज़्यादा दूर पे स्टेबल नहीं होंगे, तो वहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी।
तब तक वो स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं होगा, भले ऑक्टेट पूरा आ जाए। लेकिन जितनी दूरी ज़्यादा होगी वहाँ मिनिमम रिपल्सन मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी। इन सारे केस में यही है, रिपल्सन मिनिमम है और स्टेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लार्ज मॉलिक्यूल वालों के हम जो है कि एक्यूरेटली शेप डिसाइड कर सकते हैं। ओके, याद ये रखना है बच्चों की ट्राइगोनल, प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल और लीनियर, इतने स्ट्रक्चर होते हैं। अब इतने स्ट्रक्चर में अगर सारे बॉन्ड पेयर हैं तो जो हम सोचते हैं वही होगा। जैसे अगर लीनियर के केस में 2 बॉन्ड पेयर हैं और कोई लोन पेयर नहीं है, तब तो उसका रेगुलर शेप लीनियर आएगा। ट्राइगोनल पिरामिडल की बात करते हैं, अगर तीनों की तीन बॉन्ड, ट्राइगोनल में 3 बॉन्ड बनता है, अब तीनों वहाँ पे बॉन्ड पेयर है, जैसे यहाँ के केस में, इस केस में देख रहे हैं, तो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर आएगा नो डाउट। अगर 4 बॉन्ड बने हैं, टेट्राहेड्रल है, इस केस में टेट्राहेड्रल होगा। अगर कहीं भी सेंट्रल मेटल के पास 4 बॉन्ड होंगे तो वो टेट्राहेड्रल होगा। लेकिन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के केस में अगर 5 बॉन्ड हो गया तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो जाएगा। एंड अगर मान लो ऑक्टाहेड्रल केस में क्या होता है कि वहाँ पे 4 एक प्लेन में या 2 एक प्लेन में होते हैं इलेक्ट्रॉन, वहाँ पे कुल मिलाकर के 6 बॉन्ड बनते हैं। तो 6 की 6 अगर बॉन्ड पेयर हैं तो उस केस में जो है कि क्या होगा, उस केस में कोई रेगुलर ज्योमेट्री होगी, जो हम सोचेंगे वही होगा, वहाँ पे ऑक्टाहेड्रल होगा। अगर PCl5 की तरह से कोई भी मॉलिक्यूल है और सारे बॉन्ड पेयर है, हमने देख लिया सारे बॉन्ड पेयर है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में सारा का सारा शेप जो हम सोचेंगे वही आएगा। तो हमारे कहने का मतलब क्या है, हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर सारे बॉन्ड पेयर हैं तो ज्योमेट्री वही होगी जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो हम सोचते हैं वही होगी, जो हम सोचते हैं वही होगी, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। लेकिन अगर लोन पेयर आ गया तो उस कंडीशन में जो सोचेंगे वो होगा नहीं, जो होगा हम सोच नहीं पाएंगे। बात समझ आया? तो ये थ्योरी बेस है सारा, जो है कि थ्योरी है यहाँ पे। मतलब ये भी नहीं है कि अब इसमें कोई जो है कि अपवाद नहीं है, कोई वो नहीं है, कहने का मतलब कि कोई एक्सेप्शन नहीं है। एक्सेप्शन है, ऐसी बात नहीं है। केमिस्ट्री है और एक्सेप्शन ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये सब थ्योरेटिकल बेसिस पे है, एक्सपेरिमेंटल बेस पे नहीं है। These are all the whisper theory regarding the effect of the lone pair electron or electron pair repulsion on the molecule so, but it is not clear। बस एज्यूम कर लिया हमने और वो ऐसा ही हो गया, तो इस चीज़ में डाउट है। तो आज हम लोगों ने विस्पर थ्योरी को देख लिया। विस्पर थ्योरी के क्या अब के बेस पे कुछ शेप हम लोग कल देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।